الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وآل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دعا گو ہوں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرشدہ پر بیٹھنا قبول منظور فرمائے، بانی مجلس کے مولا دلی مقاصد پورے فرمائے، اس بڑے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے، جو اپنے دل میں جائے شرعی حاجات رکھتے ہیں محمد وآل محمد کے صدقے سے پروردگار سب کی حاجات پوری فرمائے، بالخصوص جو بیمار ہیں مولا انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے، جو مقروض ہیں مولا ان کے قرض ادا فرمائے، جو بے اولاد ہیں مولا انہیں اولاد نرینا عطا فرمائے، حمایت بھائی کو مولا اولاد نرینا عطا فرمائے، بھائی استجاب علی کو مولا اولاد نرینا عطا فرمائے، جو مومنین مرحومین مومنین مومنات دنیا سے چلے گئے والے ان سب کے درجات بلند فرما۔ آج پاکستان میں ایک مولا کی منظور نظر مدہ خان چودھری غضنفر عباس گندل صاحب کا انتقال ہوا ہے، دعا فرمائے کہ مولا انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے، ہماری لاکھوں نووں کی ایک ہی دعا ہمارے والد کا درود جل فرما، ہماری ماں کو ہم سے راضی فرما، ایک صلوات بابا کو بلند اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ ہے بات سنیے، چونکہ سارے میرے آپ جتنے احباب تشریف فرمائے سب مولا کی ماتمی اور عزادار تشریف فرما ہے، اللہ کی اس کائنات میں اس کے اول انتخاب کو سیدہ فاطمہ توجہ کیجیے گا، اللہ کی میں نے کہا اول انتخاب جناب سیدہ کے، اس لیے کہ جو پہلے ہوتا ہے تعارف بھی اسی سے پہلے ہوتا ہے، یہاں جو پہلے رہتا ہوگا پہلے اس کا نام ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہوگا اس کا نام ہوگا۔ آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں تو اگر کوئی آ کر وہاں پر کہے کہ یہاں کون رہتا ہے تو آپ یہاں یہ نہیں کہیں گے کہ یہاں میں رہتا ہوں، آپ کہیں گے یہاں میرے بابا رہتے ہیں، پھر میں رہتا ہوں، اور پھر آئزہ کربا، یعنی جو پہلے ہوتا ہے اس کا نام پہلے لیا جاتا ہے۔ آل محمد کے گھرانے میں معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ کون کتنا پہلے ہے، محمد آل محمد کے گھرانے میں یہ فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ کون کتنا پہلے ہے۔ اللہ نے دنیا اور ہمارے لیے مسئلہ حل کرنے کے لیے چادر کے نیچے پنجتن کو اکٹھا کیا، جبریل نے پوچھا پالنے والے من قاتل ھذا القصہ، اس چادر میں کون ہے؟ تو جو پہلے تھا کہہ دیا ہم فاطمہ، کہ اس میں جناب سیدہ ہیں، جناب سیدہ کا بابا ہے، جناب سیدہ کے شوہر ہیں اور جناب سیدہ کے بچے ہیں۔ ظہور میں رسول پہلے ہے، وجود میں بطول پہلے ہے، اس لیے سرکار نے فرمایا تھا کہ الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، اپنے باپ کی اصل ہے، یعنی عربی میں اصل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سرکار آپ نے یہ کیوں کہا؟ کہ ایک تو یہ کہ دنیا کو معلوم ہو کہ میری اصل میری بیٹی سیدہ ہے، اور دوسرا فرمایا اس لیے میں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے میری والدہ کے ایمان میں شک کیا تھا کہ جناب آمنہ کا کیا ایمان تھا، فرمایا میں نے دنیا کے سامنے فاطمہ کو نمونہ بنا دیا کہ میری بیٹی فاطمہ کو دیکھ لو، جو کچھ فاطمہ ہے وہی کچھ میری ماں آمنہ۔ یہ بس تمہیدی بات میں نے اس لیے کی، مجھے آپ کو لے کر آگے چلنا ہے، پہلے کہا ہے کہ سارے میرے ماتمی حضرات تشریف فرمائے، مولا بانی مجلس کی رزق روزی کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اور ہمارے بھائی جو مجلس کے بانی مولا انہیں اس ذکر کا صدقہ اولاد نرینا عطا فرمائے۔ اب جاگے گا، یعنی جناب سیدہ اس کا انتخاب ہے۔ دوسرا جملہ سمجھے گا، جسے اللہ نے منتخب کیا،
उसे फातिमा कहते हैं। सुभान अल्लाह। और जिसे जनाब फातिमा ने मुंतखब किया उसे उम्मुल बनीन कहते हैं। इसी तरह सलामत रहे। मैं अपने जवान दोस्तों भाइयों से दुआ लेना चाहता हूँ और अपने बुजुर्गों से बिलखुसूस मैं दुआ का तालिब हूँ। जिसे अल्लाह ने मुंतखब किया उसे खातून जन्नत कहते हैं, और जिसे जनाब सैयदा ने मुंतखब किया उसे बीबी उम्मुल बनीन कहते हैं। इन्हें खुद इंतखाब किया। जिसे अल्लाह ने मुंतखब किया वो कायनात की निगहबान बनी, और जिसे जनाब सैयदा ने मुंतखब किया वो बतूल के घर की निगहबान बनी। इस बीबी की अजमत समझिएगा कि मुंतखब करने वाली जात खुद जनाब सैयदा, यानी अपनी शहादत से कुछ दिन पहले अमीर कायनात को बुलाया, कहा या अली मैं दुनिया से जा रही हूँ, मेरे बाद कलाबिया खानदान में शादी कीजिएगा उस बीबी से जो मेरी हमनाम होगी। अल्लाह आपको उसके दुर्जे इस्मत से एक बेटा देगा, आप उसका नाम अब्बास रखें। मेरी सारी की सारी गुफ्तगू आज इसी बाबुल हवाइज पर है, अगर आप मेरा साथ देंगे तो। शब जुमा है इसलिए, और पहली बार यहाँ पर ये प्रोग्राम हो रहा है मजलिस का, तो इसलिए मैंने इंतखाब यही किया कि सरकार वफा के जो बाबुल हवाइज है। देखिए जनाब अब्बास इमाम नहीं है, मगर इमामत के एतमाद का नाम अब्बास है। थोड़ा सा मेरा हौसला दीजिएगा। यानी फरमाया अल्लाह आपको उस बीबी के दुर्जे इस्मत से एक बेटा देगा, आप उसका नाम अब्बास रखना। अमीर कायनात फरमाते सैयदा जैसे आपकी मर्जी मैं वैसे ही करूंगा, मगर मुझे बताइए आपने उस शहजादे का नाम अब्बास तजवीज क्यों किया? आपने उसका नाम अगली भाई लुत्फ लेना अब्बास ही क्यों रखा? फरमाया सैयदा ने कि या अली उसकी वजह है। बीबी कौन सी? फरमाया आपका नाम अली है, मैंने आपके नाम की अहन ली, मेरा लक़ब बतूल है, मेरे बाबा का नाम अहमद है, अपने बाबा के नाम की अलिफ ली। जितना प्यार हसन से उतना प्यार हुसैन से, दोनों के नाम की मुश्तरका सीन लेके नाम अब्बास रख दिया, ताकि दुनिया को पता चले ये फकत मासूम नहीं मुरक्का पंजतन है। ताकि चेहरा जो है वो नजर भी आता रहे। और मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद क्या कहा कि ताकि दुनिया को मालूम हो कि अब्बास फकत मासूम नहीं बल्कि मुरक्का पंजतन है। एक जुमला और कहूँ ना चाहते हुए भी कहना चाहता हूँ कि जैसे अदनान भाई अली अल्लाह नहीं है मगर लोगों को लगता है ना, कहा था ना कि अली अल्लाह है, इसलिए मैंने कहा कि अली अल्लाह नहीं है मगर लगता है। इसी तरह अब्बास अली नहीं है आपकी मोहब्बत में आया हूँ। और अदनान भाई ने मेरे भाई रात ने कहा, मैं नॉर्थम्पटन में मजलिस थी, वो अकलीम भाई जानते हो, उसे माजरत की और हम यहाँ पर आए हैं, तो ये आपस की बात है, ये आप मुझे बतला दीजिएगा कि 5-10 मिनट अगर मैं पढ़ लूँ तो आप मैंने कहा कि अब्बास यानी अली नहीं है मगर लगता है। एक जुमला कहूँ आपको, 2 साल के थे ना जनाब अब्बास, अमीर कायनात की गोद में बैठे, प्यार हो रहा है,
4 साल के हो गए, उसी तरह प्यार शफकत गोद में बैठे। अली जनाब अब्बास की जुल्फों में हाथ फेर कर कहते बेटा आज मैं तुझे अपनी एक फजीलत बताऊं। बाबा बताइए। फरमाया मैं वो हूं जो खालिक के घर में आया। घबराने की बात नहीं। आलम मना में ना अमीर कायनात का पुराने सामित के साथ मकालमा हुआ। अली ने फरमाया तू अल्लाह का खामोश किताब है, मैं अल्लाह की बोलती किताब हूं। तू साबित है, मैं नातिक हूं। अली फरमाते मगर हम दोनों में एक फर्क है। कुरान ने कहा वो क्या? फरमाया तू मखलूक के घर उतरा, मैं खालिक के घर। कि तू मखलूक के घर उतरा, मैं खालिक के घर उतरा। मेरे जितने मातमी नौजवान दोस्त तशरीफ फरमा है, अली फरमाते उसके बावजूद तुझ में और मुझ में एक ऐसा बुनियादी फर्क है आज़म साहब जो कयामत तक मिट ही नहीं सकता। कुरान ने कहा मौला वो क्या? फरमाया तुझ में और मुझ में जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है तुझे मुनाफिक बढ़ सकता है, मेरी मोहब्बत मुनाफिक के दिल में नहीं मगर अली की मोहब्बत मुनाफिक के दिल में, मुनाफिक के दिल में अली की मोहब्बत समा नहीं सकती। अली की मोहब्बत और मुनाफिकत दो मुतजाद चीजें हैं। और मैं और आप इसलिए खुश नसीब हैं कि हमारे दिल की बस्ती में अली रहता है। अल्लाह वो धड़कन ही ना दे जिसमें अली ना हो। अल्लाह वो घर ही ना दे जो हुसैन का आधा खाना ना बने, जहाँ बास का अलम ना लगे। अल्लाह वो लंगर ही ना दे जो हुसैन के दस्तरखान से मंसूब ना। जनाब अब्बास से क्या फरमाया मेरे कायनात ने कि बेटा मैं वो हूँ जो खालिक के घर आया। जनाब अब्बास ने अपने बाबा की झोली छोड़ी। ये जुमले को खास तवज्जो कीजिएगा। नन्हे हाथ जोड़कर कहा बाबा मैं भी अपनी एक फजीलत बताऊं। बेटा मेरा बात करने का मकसद यही था, बात करें। फरमाया बाबा आप कहाँ आए? फरमाया मैं वो हूँ जो खालिक के घर आया। जनाब अब्बास ने हाथ जोड़कर कहा बाबा आप उसके घर आए जहां मखलूक रुजू करती है, मैं उसके घर आया जहां खालिक रुजू करता बतला दूं। मां यंतिकु अनिल हवा किसे कहा? अल्लाह ने अपने रसूल को कि ये नुत्क भी नहीं करता जब तक इसे वही ना हो जाए। ये वही कहता है जो मैं कहता हूँ। अब अल्लाह ने चाहा कि मेरा महबूब इनके दरवाजे पर खड़ा होकर कहे अस्सलामु अलैकुम या अहलुल बैतुल नबुव्वा। अल्लाह ने रुजू किया इनके दरवाजे पर, कभी इन्नमा युरिदुल्लाह कहकर, कभी इन्नमा वलियकुमुल्लाह कहकर, कभी कुल ला असलुकुम कहकर, कभी कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह कहकर। इसलिए अब्बास ने कहा आप वहां आए जहां मखलूक रुजू करती है, मैं वहां आया जहां खालिक रुजू करता है। अल्लाह नहीं कह रहा है आले मोहम्मद मैंने तुमसे रिश्क को दूर रखा और ऐसे पाक रखा कि जैसा कि पाक रखने का बोलिएगा हक है। यही तो घराना है। थके तो नहीं आ सकते। समझिएगा जनाब अब्बास इमाम नहीं है मगर इमामत के एतमाद का नाम नहीं, बल्कि मेरा दिल चाहता है कि मैं आप लोगों को एक जुमला अमीर कायनात का जो बीबी उम्मुल बनीन सलाम अल्लाह से अक़्द हुआ ना उस पर एक जुमला सुनाऊं अगर आप बेदार हैं तो। देखिए अली बादशाह ने क्या कहा था कि जाओ जनाब अकील से कि कलाबिया खानदान में जनाब हजाम से कहो कि हमें आपकी बेटी का रिश्ता चाहिए। जनाब अकील आए और बीबी उम्मुल बनीन के वालिद मोहतरम से कहा था कि मैं अकील हूं अबू तालिब का बेटा, मैं अपने भाई अली का पैगाम निकाल आया हूं, आपको कोई एतराज? जनाब हजाम फरमाते मुझे एतराज नहीं है, ले यत्मिनल कल्बी इत्मीनान कल्ब के लिए बता दे ये वही अली है जो मोहम्मद का दादा
दामाद है। हाँ हाँ, ये वही अली है। आए घर बीबी सुमामा अपनी ज़ौजा के पास, मुबारक हो अली का रिश्ता हमारे घर आया। मैंने पढ़ दिया और आपने सुन लिया। काश कि उस्ताद कमर जलाली के 4 मिसरे आपके जहन में हो तो फिर आपको लुत्फ आएगा कि जनाब हज़ाम ने क्यों कहा। हालांकि कलाबिया खानदान खुद शुजाअत में मशहूर था, मगर क्या कहा आकर कि मुबारक हो अली का रिश्ता हमारे घर आया है। उस्ताद कमर जलालवी ने फरमाया था, मुर्तजा को खानाजादे रब्बे अकबर देखकर, बयाती बेटी पैगंबर ने बड़ा घर देखकर। खानाजादे रब्बे अकबर देखकर, बयाती बेटी पैगंबर ने बड़ा घर देखकर। ये कहा, फरमाया खैर मुबारक का जाओ एक बार उम्मुल बनीन से मालूम कर लो कि क्या वो इस निकाह पर राजी है। अगर जुमला मैंने समझा दिया तो जब जब आपको याद आएगा आप मेरे हक में दुआ करेंगे। बीबी सुमामा फरमाती कि मैं अपनी बेटी से मालूम करने के लिए जो आई तो मैंने क्या देखा, मेरी बेटी का सर सजदे मेरी बेटी ने सजदे से सर उठाया। तवज्जो फरमाइएगा। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह जारी की। जब मेरी बेटी तस्बीह पढ़कर फारिग होगी, मैंने कहा बेटी क्या तुम इस बात पर राजी हो कि हम तुम्हारी शादी अली से कर दें। फरमाया मेरी बेटी ने मुसल्ला छोड़ा और दोनों बाहें मेरे गले में डाली और मेरी पेशानी का बोसा लेकर कहा, अम्मा आप अभी तक निकाह की बात कर रही हैं? अभी थोड़ी देर पहले मेरे हुजरे में बतूल मुझे अब्बास की मुबारक दे के जा चुकी है। इसलिए मैंने कहा कि जनाब अब्बास इमाम नहीं है, मगर इमामत के एतमाद का नाम भाई अब्बास है। जनाब मोहम्मद बिन हनफिया मौला अमीर के बेटे एक जंग में ले गए। मौला फरमाते आ बेटा आज मैं तुझे आदाब जंग सिखाऊं। बिस्मिल्लाह बाबा सिखाइए। फरमाए बेटा जब मैदान में उतर जाओ तो फिर पहाड़ अपनी जगह छोड़े तो छोड़े, थोड़ा सा और नहीं थकना। पाकिस्तान से आए और आप सारे मेरे अपने बैठे हैं भाई हैं आप सारे मेरे, तो मैं जानता हूं कि कौन सा मजमा कितनी देर मजलिस सुन सकता है। इस बात का दादा है मातमी हजरात और आपकी खिदमत में पेश करने जाता हूं भी होगी यहाँ पर। मौला आप सबको प्रदेश में आप मोहम्मद वाले मोहम्मद हमेशा आप लोगों पर अपना साया रखें। क्या कहा कि पहाड़ अपनी जगह अली जी छोड़े तो छोड़े, मगर अली के लाल के कदम न पीछे हो। बाबा ठीक है, अब जुमला समझिए कि ऐसी तरबियत अली ही दे सकता है। फरमाया कि बेटा जब मैदान में उतर जाओ तो दुश्मन पर निगाह ऐसे गाड़ना कि देखो पहले वाले को भागे आखिरी वाला। और भागे आखिरी वाला। बाबा ठीक है, ये कहकर फरमाया जाओ बेटा जंग करो। अब जंग की, जंग करने के बाद वापस आए। बाबा ठीक है, फरमाया हाँ अब मैं जंग करता हूं, जो कमी रह गई हो तुम देख लेना। ये कहकर अमीर कायनात गए, जंग की जंग करके वापस आए। बेटे से कहा बेटा कुछ अपनी और मेरी जंग में फर्क नजर आया? जुमला बड़ा ये समझेगा कि साहिबान इशारत और अदब से ताल्लुक रखने वाले अहबाब के लिए है, इसलिए मैं जुमला आपकी नजर कर रहा हूँ। बेटा कुछ अपनी और मेरी जंग में फर्क नजर आया? जनाब मोहम्मद हनफी हाथ जोड़कर कहते बाबा आप खुद बता दीजिए। का तेरी और मेरी जंग में बस यही फर्क है, अली के लाल ऐसे लड़ते हैं जैसे तू लड़ा, अबू तालिब के लाल ऐसे लड़ते हैं जैसे अबू तालिब का खून, अबू तालिब के लाल ऐसे लड़ते हैं कि जैसे मैं लड़ा। ये बात मैंने आपको क्यों सुनाई कि मोहम्मद बिन हनफिया को अमीर कायनात जंग में लेकर गए और वहां पर जाकर आदाब जंग बतलाए। मैं मजहब तब्दील कर लूं, अगर कोई मुझे किसी ज़ईफ से ज़ईफ रिवायत में भी दिखाए कि कभी अमीर कायनात ने जनाब अब्बास को आदाब जंग सिखाए हो, इमाम नहीं है इमामत का एतमाद, ये जानिएगा। कहीं किसी ज़ईफ से ज़ईफ रिवायत में भी दिखाइए कि कहीं अली ने अब्बास को आदाब जंग सिखाए हो, नहीं, बल्कि जनाब अब्बास पर तो अमीर कायनात को इतना एतमाद था कि 11 साल 7 माह का गाजी था, सिफीन का मैदान था। अमीर कायनात ने फरमाया बताओ
मेरा कौन सा बेटा जंग करेगा? हसन ने कहा बाबा मैं, हुसैन ने कहा मैं। फरमाया बैठ जाओ। या कोने से जनाब अब्बास खड़े हुए, हाथ जोड़कर कहा बाबा मेरा दिल है कि मैं जंग करूं। अली फरमाते बेटा दिल मेरा भी है कि जंग तू करे, मगर बात से वादा कर जब तू जंग करे दुश्मन को पता ना चले अली था कि अगर दुश्मन को मालूम ना हो कि अली था बोलेगा बाप था कि बेटा था। अल्लाह अकबर, ये एतमाद है। आइए नहीं शब आशूर की बात अगले मई के जब सुल्तान करबला ने चराग गुल करवाया। अदनान भाई ऐसे ये ऐसा मौजू और ऐसी बात है कि इस पर बात करते हुए लोग पहले एक लम्हे के लिए सोचते हैं, लेकिन मैं आप सारे मातमियान की झोली में मैं ये दुर्जे इसमें डालना चाहता हूँ कि इतना नायाब गौहर है जो आप लोगों के हक में है और आप वो ही के लिए है कि जब अली अलैहिस्सलाम सुल्तान करबला ने कहा था ना शब आशूर अकबर बेटा जी बाबा चराग बुझा दो, चराग बुझ गए। ये कहने के बाद हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक फसीह बली खुतबा दिया था कि कोई मुझे अगर छोड़कर जाना चाहता है तो बेशक चला जाए। तवज्जो है? देखा नहीं आप साहिबान मोहतरम ने, मीडिया आप भी देखते हैं मैं भी देखता हूँ, जिस जाहिल ने भी हुसैन बनने की कोशिश की अपने मुंह दिखाई। तो वो है कि जो बयाबाद जंगल को जिसने बनकर जमीन को मोहल्ला बना दिया, ये इस्लामाबाद की बारिश में न रुक सके। अच्छी बात है ऐसे लोग बात करें ना, अच्छी बात है, ऐसी होनी चाहिए। इसलिए माजरत के साथ आप सारे मेरे अपने बेटे, अब हमारे अपने भी यही कहने लगे हैं जी मेराज कर लो ना, अगर तुम अकायद की और तुम अमल करो, नमाज रोजा है भरपूर टाइम पे करो तो तुम भी माज़अल्लाह हुसैन बन सकते हो। जरा उन जोहला को ये पैगाम दीजिए हुसैन बनने के लिए बतूल जैसी माँ हुसैन अहमद भी है ना 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 जागेगा, मुंह की खाली पता चल गया। मुझे आपने फेसबुक पे मैसेज पढ़ाया, किसी ने बड़ा अच्छा लिखा, उन्होंने कहा ताहिर कादिर साहब क्या हो गया 1400 साल में आपने तो सारी तारीख ही बदल दी, क्या कभी यजीदियत हुसैनियत ने भी यजीदियत से समझौता किया? आप करने को चले गए। ना 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 ना, हुसैनी सर कटाना जानता है, सर झुकाना नहीं। सुल्तान करबला ने यही बतलाया ना कि हम सर कटा सकते हैं, सर झुकाएंगे नहीं, और सर नहीं झुकाया इसलिए तो खुदावंद सुखन मीर हदीस ने कहा था झुकाना चाहा था जिस सर को शाम वालों ने शिकस्त देखी उस सर को खुद उठा के चले। झुकाना चाहता जिस सर को शाम वालों ने शिकस्त देखिए बोलिएगा। महमूद भाई जो है वो यूके में रहकर वक्त आ जाते हो। कोई बात नहीं, झुकाना चाहता जिस सर को शाम वालों ने शिकस्त देखिए उस सर को खुद उठा के। बात भूली तो नहीं है? हुसैन ने फरमाया कोई मुझे छोड़कर जाना चाहता है बेशक चला जाए। इसमें एक गोशा है। फरमाया क्योंकि सुबह है जंग और मुतमईन होकर जाएगी, बिना सोच के यहाँ बैठा रहे कि अगर किसी को कोई ये सोचे कि जी करबला के बन में तन्हा हुसैन को छोड़ दिया तो अल्लाह दोज़ख में भेजेगा। हुसैन फरमाते मालिक की जन्नत हूँ, जन्नत की सनद साथ ले जाओ। मालिक के जन्नत हूँ, जन्नत की सनद साथ ले जाओ। कितना करीम है मेरा और आपका मौला हुसैन। जो छोड़ के जाने वाले को जन्नत दे वो आने वाले को क्या देगा? जो छोड़ के जाने वाले को जन्नत दे वो आने वाले को क्या देगा? और ये कहने के बाद हुसैन ने, क्योंकि ये बात पढ़ना मकसूद सिर्फ जनाब अब्बास की फजीलत है, ये कहने के बाद हुसैन फरमाते हैं अब्बास भाई जी मौला। फरमाया चिराग रोशन करो। चिराग रोशन हुआ, क्या देखा फौज हुई, तब्दीली आ गई। पहले बिखर के बैठे थे अब सिमट के बैठे। पहले किसी की कमर झुकी हुई थी अब वो सीना तान के खड़ा। जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर खड़े हुए, अब लुत्फ लीजिएगा। हाथ जोड़कर कहा कि मौला एक दोस्ती के नाते बात पूछूं? हुसैन फरमाते पूछो। अब आपकी भी जहानत का इम्तिहान है। मौला तेरा कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता। हाँ हबीब बोलो क्या कहना चाहते हो?
मौला मैंने देखा कि जब आपने चिराग गुल करवाया तो नाम अकबर का लिया, रोशन करवाया तो नाम अब्बास का लिया। बोला वजह क्या है? हुसैन फरमाते हैं, अभी तुम तो जानते हो ना कि मैंने चिराग बुझाने के बाद दी थी खुली छुट्टी कि कोई जाना चाहता है बेशक चला जाए। मुझे उम्मुल बनीन के खून पर इतना एतमाद है कि कोई जाए तो जाए, अब्बास नहीं जाएगा। कोई जाए तो जाए, अब्बास नहीं जाएगा। ये दर्स दिया, यानी कि क्यों? इसलिए कि हुज्जत की आवाज पर लब्बैक कहना वाजिब, जो हुज्जत के बुलावे पे ना आए वो काफिर। यही तो वजह थी। कोई फर्क भी क्या था 9 लाख के लश्कर में और 72 के लश्कर में? यही तो फर्क था। पढ़ते 9 लाख वाले भी नमाज थे, पढ़ते 72 वाले भी नमाज थे। वो अक्सरियत में होने के बावजूद परेशान, ये किल्लत में मगर मुतमईन। ऐसे मुतमईन कि अल्लाह नफ्स मुतमईना कह रहा है। अल्लाह इन्हें क्यों कह रहा है? इसलिए कि 9 लाख के पास नमाज थी, 14 नहीं थी। 72 के पास नमाज भी थी और 14 भी थी। हुज्जत खुद मौजूद है वहां पर और खुदा की कसम। और हुसैन उस एक लम्हे में मालूम नहीं हुसैन क्या क्या है। शरीयत हुसैन है, रहबर हुसैन है, इमाम हुसैन है, बोलिएगा आका हुसैन है, मौला हुसैन है। शरीयत जो बानी शरीयत है वो हुसैन है। करबला के बन में आपको याद नहीं कि हजरत अवैसे करनी जो इतने जलीलुल कद्र नबी के सहाबी थे, इतने कौन कर सकता है आज के दौर में हजरत अवैसे करनी जैसी इबादत कि जो रात को अगर अदनान में सोचते थे ना क्या सारी रात कयाम करना, तो सारी रात कयाम में। एक रात सोचा है सारी रात रुकू करना है तो रुकू में, एक रात सोचा सारी रात सजदा करना है तो सजदे में। असर का वक्त था, घर के बाहर आफ्ताबे से वुजू कर रहे थे, अचानक दूर से गर्द उड़ती हुई दिखाई दी। साथ वाले से कहा ये क्या हो रहा है? उसने कहा तुम्हें नहीं मालूम अली सिफीन के मैदान में जंग करने के लिए जा रहे हैं। ये कहना था पानी वाला तख्त उठाया दीवार में मार दिया, का नमाज जंग पे जा रही है, मैं क्या कर रहा इस बात पर फख्र करते हैं कि अल्लाह ने हमें अली जैसा इमाम मिंबर कूफा पर बैठकर फरमाया यो नास अना सलातुल मोमिन। ये है वो घराना कि जिसने हमें पहचाने तौहीद कराई। 14 दुनिया में शनासाई तौहीद के लिए आए, इन्होंने इबादत करके। ये खुद सरकार सादी का फरमान है कि लौला नहनु मा ओबिदल्लाहु व लौला नहनु मा ओरिफल्लाहु, अगर हम ना होते तो अल्लाह की इबादत ना होती, अगर हम ना होते तो अल्लाह की पहचान ना होती। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पहचाने तौहीद के लिए दुनिया में। और फिर ये जनाब अब्बास, खुदा की कसम मर्तबा जानते क्या मिला? अमीर कायनात के 18 बेटे, हसनैन को छोड़कर 16 में से अकलीम भाई सिवाय जनाबे अब्बास के अली के 15 बेटों को भी इजाजत नहीं है कि वो बतूल को मां कहें। जरा लीजिएगा, कितने? अली के 15 बेटों को भी इजाजत नहीं है कि वो जनाबे सैयदा को मां कहें। ये रुतबा सिर्फ जनाबे अब्बास के पास है। मैंने एक तारीख में पढ़ा कि एक शख्स बीबी उम्मुल बनीन ने देखा कि जनाबे अब्बास अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं है, अमीर कायनात के पास नहीं, यानी अब्बास अपने बिस्तर पे नहीं है। कहा अच्छा। सरकार हसन मुस्तफा और सरकार सुल्तान करबला को अमीर कायनात ने जगाया, चलो बेटो तुम्हारे भाई को ढूंढने चलते हैं। कहकर क्या चले, घर से ढूंढने चलते हैं। हमारे भाई पहुंचे सीधा जन्नतुल बकी। जानते वहां क्या देखा कि जनाब अब्बास कब्र सैयदा पर लिखते हुए। क्या बात है आप लोगों की कि मैंने पढ़ा, फजीलत का जुमला है और आपकी आंखों में आंसू आ गए। कभी दाएं रुखसार जनाब सैयदा की कब्र पे रखते हैं,
कभी बाएं रुखसार बीबी सैयदा की कब्र पे रखते हैं। अमीर कायनात फरमाते हैं बेटा अब्बास रात के इस पहर में और यहाँ अल्लाह जाने जनाब अब्बास क्या जवाब देते। कब्र सैयदा से आवाज आई या अली अब्बास खुद नहीं आता। सैयदा क्या मतलब? फरमाया मैं इसे अपने पास बुलाती हूँ, इसका दिल करता है ये मुझे माँ कहे, मेरा जी चाहता है मैं इसे बेटा कहूँ। मैं रात के पहर में इसे अपनी कब्र पे बुला लेती हूँ, ये मुझे माँ कहता है मैं इसे बेटा कहता हूँ। अल्लाह अकबर। ये है जनाब अब्बास की अजमत और फजीलत। बस बयान मैंने आज का समेट लिया, आपकी आंखों में भी आंसू आ गए। ये लुटा हुआ काफिला, मुझसे कहा ही गया था कि वापसी मदीना के या रिहाई का पढ़ दीजिएगा। मैदाने करबला के हवाले से पूछा था ना जनाब सज्जाद से कि मौला मैदाने करबला में वो पहला कौन सा मौका था जहाँ तेरे बाबा ने कहा मैं गरीब हो गया। अल्लाह अकबर। तो मेरे मौला ने रोकर फरमाया जब मेरे चचा अब्बास ने जीन छोड़ी थी तो मेरे बाबा ने रोकर फरमाया था मेरा अल्लाह करबला में मैं हुसैन गरीब हो गया। अल्लाह अकबर। मैंने पढ़ दिया और आपने सुन लिया। आप जानते कि जब ये लुटा हुआ काफिला रिहाई मिली थी और करबला आया था ना चेलुम मनाने के लिए, खुश नसीब है मैं और आप, हमारा कोई मर जाए ना हम 40 दिन के अंदर अंदर उसका चेलुम कर लेते हैं। अल्लाह जाने कितना गरीब है बतूल का बेटा कि जिसकी बहनों ने उसका चेलुम किया मगर 1 साल के बाद। अल्लाह अकबर। जब पहुंचा है ना काफिला करबला के बाहर तो जनाब जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी के जो पहले जाहिर है कब्र हुसैन के, उनका काफिले वालों इस नगरी के बादशाह का हुक्म है जिसे यहाँ से गुजरना है ना वो पैदल गुजरे। अली की बेटी ने रोकर, बस मैंने यही एक पूरा कहना है, अली की बेटी ने रोकर फरमाया बेटा सज्जाद चचा जाबिर से पूछो इस नगरी के बादशाह का नाम क्या है। अगर मातम करना है तो जुमला समझना, इस नगरी के बादशाह का नाम क्या है। जनाब जाबिर ने कहा इस नगरी के बादशाह का नाम अब्बास है। बस अब्बास का नाम आना था, अली की बेटी तड़प गई। रोकर का बेटा सज्जाद चचा जाबिर से कहे अब्बास से पूछे क्या वो भी पैदल आए जो शराबी के दरबार में खड़ी रही, जो शाम के बाजारों में पत्थर खाती रही। जनाब जाबिर गए और जाकर जो पैगाम दिया तो कब्र अब्बास को जलजला आ गया। आवाज आई चचा जाबिर मेरी आकाज़ादी से कहो आज सवारी समेत मेरी कब्र पे आ जाए। अब सुनो क्या दारू कि जनाब सज्जाद तमाम बीवियों को जब जनाब अब्बास की कब्र पर पहुंचे ना तो जनाब सज्जाद ने रोकर यही जुमला कहा चचा कब्र से उठ और देख एक काफिला मैं लाया हूँ। चचा जो काफिला तू लाया था उसमें 64 बीवियां थी, जो काफिला मैं लाया हूँ इसमें 12 बीवियां हैं। बस जरा कब्र से निकल के मुझे बता इन 12 बीवियों में तेरी आकाज़ादी ज़ैनब अजरुकुम अल्लाह। और उन्हें वालों जब ये काफिला वापस मदीने आया था ना, छोड़ दी मैंने सारी बात, बस जुमला समझना। और बशीर ने कहा था ना मदीना वालों मदीना रहने के काबिल नहीं रहा, तो ये आवाज जनाब उम्मुल बनीन के कानों में गई का बशीर मुझे बता मेरा अब्बास आ गया। अब अगर मातम करना तो जुमला समझना, बशीर बता मेरा अब्बास आ गया। बशीर ने हाथ जोड़कर कहा बीबी आपने ना हुसैन का पूछा ना अकबर का पूछा, अब्बास का क्यों पूछा? कहा इसलिए कि मैंने अब्बास को मुहाफिज बनाकर भेजा था। अगर अब्बास वापस आ गया तो मैं समझूं कि हुसैन भी आ गया, अकबर भी आ गया। बशीर ने कहा बीबी तेरा अब्बास नहीं आया। कहा है क्यों क्या हुआ? क्या तेरा अब्बास फुरात के किनारे बाजू कटाए सो गया, मातम करोगे? बीबी ने रोकर फरमाया बता कितने मारने वाले थे मेरे अब्बास को? तो बीबी 9 लाख का नाम आया। बीबी का रुख करबला की तरफ हो गया, रो के कहा हुसैन मजबूरी कोई और होगी, 9 लाख से मेरा अब्बास मारा नहीं जाता। या जनाब आलिया की आवाज है हाँ अम्मा अब्बास को इजाजत ना मिली। पालने वाले हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर बानी में इजाफा फरमाए, बानी में जैसे माइन भाई को औलाद दरी नाता फरमाए, जाबली को औलाद दरी नाता फरमाए, जो भी औलाद है औलाद नहीं, जो तंगदस्त दूर फरमा, जो परेशान हालत की बात है इसी बाबुल हवाइज का शब जुम्मा है भाई अल्लामा काजिम कफाई शब जुम्मा जनाब अब्बास की कब्र पर जनाब अब्बास की शहादत पढ़कर घर आए सो गए। आलम ख्वाब में जनाब सैयदा की ज़ियारत हुई। बीबी फरमाती काजिम कफाई आज तूने मेरे बेटे की बड़ी शहादत पढ़ी। बीबी गलत पढ़ी का शहादत सही पढ़ी मगर तूने इंसाफ नहीं किया। बीबी कौन सा इंसाफ? का आज के बाद जहाँ कहीं मेरे अब्बास की शहादत पढ़ना ना मेरे शियों से एक सवाल करना। बीबी कौन सा? फरमाया उनसे पूछना जब कोई सवार मैदानी जंग में गिरता है तो किसका सहारा लेता है? का बीबी बाजुओं का जरा सोच
جب میرا عباس زمین پر آیا تھا اس کے بازو ساتھ ہیں پروردگار عالم اس باب الحوائج کا صدقہ جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیاں دور فرما اہل عدنان کو شفا کاملہ عطا فرما رضا کو شفا کاملہ عطا فرما جو بھی جو زیارات کی متمنی ان کو جو زیارات سے مشرف عزاداری سید الشہداء دنیا کی جس کسی سے بھی ہوئی ہے پالنے والے تو سب کے خود حفاظت فرما پالنے مجلس کی میرے آپ کے جس کا جو اس دنیا سے چلا گیا ہے مالک ان سب کے درجات بلند فرما بالخصوص ذاکر اہل بیت جناب چودھری غضنفر عباس گوندل صاحب جن کا انتقال ہوا پالنے والے ان کے درجات بلند فرما ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ظہور فرما ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ محمد ماتم حسین